Good evening, students. We are going to continue our the next topic, the lecture number 6 of motion, the same one. We already completed some few parts. Now, let me discuss what you all learned today. Graphical proof of equation of motion. The same thing. Before we prove that same equation of motion by analytical method, now today we have to prove the same equations with the graphical method. That's how many equations are there? 3 equations are there. That 3 equations we have to prove with the graphically. This V equals to U plus AT, S equals to UT plus 1 upon 2A T square, and V square equals to U square plus 2 AS by graphically we have to prove today. Okay. Before previous topic we come to know graph, and what we are the graph are indicating, the distance time graph, velocity time graph, acceleration time graph we discuss. The same applications we have discussed, and few examples, numerical based examples on the graphical motions. With the help of the graph, you have to find the slope, or somewhere you have to find that acceleration, somewhere you have to find that the velocity, somewhere you have to find that the displacement. How to find, we know, with the help of the graph, means with the help of the area and with the help of the slope we have to find. And some questions if we have, that will be also we discuss in today's topic. Okay, let me proceed. Here the first equation, proof of the equations of the motions by graphical method. We'll start by the first equation now. Okay, the first equations, it is for this graph. The first graph is given. The graph given, time graph on x-axis and velocity given in y-axis. V is given the velocity. You accepted. Very good. You are very clever. Now, how to find? This is the x-axis, that is time axis, and given velocity. Here given the velocity like this. Correct? That is, if velocity is not starting from the zero. If velocity is starting from zero, means it is starting from the rest. Means what we are saying is velocity is going to increase. In this graph, what we are able to find, velocity is going to increase. Initial velocity and final velocity have some changes are there, some difference are there, and it is not from the zero. Let me consider this is our initial velocity u, and this is our final velocity v. You know very well from that graphical equations we learn what will get the slope of the v and t graph. What is slope of v and t graph? That is velocity time graph. If the velocity time graph is given, okay, this will be considered as the final velocity as suppose v. Okay, acceleration, very good. The slope indicates the acceleration. Very good. The slope equals what? Acceleration A. You know how to find the slope? We already learned. Okay, slope is what? If suppose you are finding with the point, slope by y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay. Now here, just for convenience, just I am writing. Suppose this point is u, this point is v, and from here, suppose I am taking the one point here. It will be the 0, and here 1 point, it will be suppose time t, whatever the time t. Now what is slope? Slope is what? y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Otherwise we can find the tan ratio also, hai na? If you know the values of tan, we can find this angle tan of theta. Okay, 2 values are there. We know about the slope. Tan of theta is also slope, correct? Yes or no? The tan theta, what is the tan theta? We will learn in the first topic. Before I will show by with both the way. What is the tan theta in triangle? Theta opposite side by adjacent side. No, opposite side by adjacent side. Okay. Here, if in figure, if you are finding that triangle, suppose you whatever we give you other name also, or we can keep the same. This side, opposite side, this one, divided by adjacent side, this one. This ratio is known as the acceleration. Okay. This ratio means this distance. And if the initial velocity is u, means this will be also u. Means what is that distance will be? V minus u, correct? Yes or no? And this distance will be the time 0 to t, t minus 0 is again t. Then what is our slope? That acceleration equals to v minus u by t. Correct? Yes or no? Then with the help of tan theta also we can find, or then we can write multiply at equals to v minus u, or v equals to u minus u plus at. Like this also we can write.
If suppose if you don't know the value of tan theta, then how to find? You know that second formula, slope formula, y2 minus y1 divided by x2 minus x1. Okay, what is the point of y2 here? Y2 is v. x2, y2 minus y1. What is y1? U. Correct? This, again we can find the slope. Slope equals to acceleration equals to y. What is y? V and u. Y2 and this one with the y1 divided by x2. x2 is, what is the point x2 here? T. x1 0. T minus 0 again t only. Correct? Then we can write a equals to v minus u by t. Then again we will get the same values. V minus u equals to at. Then v equals to u plus at. By this way we can prove the first kinematic equations. Is it out in that first kinematic equations? Understood very clearly? It's very simple. Just if you have to keep in your mind, while solving the first kinematic equations, you have to find the slope of the v and t graph, that is velocity and time graph. If you are finding the slope, we will get the accelerations. Is it clear? Now after that we will discuss about that next equation. Okay, the first equation here they solve. Okay, we already solved there. First equation just I am writing here now. The first equation is what? V equals to u plus at. We already solved with that graph. Okay, this is u, this is v, and how we find? The slope equals to v minus u by t minus 0, that is v minus u by t equals to a, that is v minus u equals to at, is v equals to u plus at. By this way, or we can write slope equals to tan theta, that is v minus u by t, this is again the same, that is v equals to u plus at. We already discussed. Okay, now we have to find the second equation, the first equation with the help of the slope. Now the second equation we will discuss now. Now second equation. For second equation also the same graph. Yes, I am plotting graph here. This is a time axis. This is the velocity axis. This is the initial velocity u. Here will the final velocity, suppose v, and we have to find the second equation now. We know very well, if suppose we have to find the displacement, what we are doing? The velocity time graph. If we have to find the displacement, okay, what is our condition? With the help of find the velocity time graph, what is our work? We have to find the area. Correct? There, if you are getting the area, then we will get the displacement. This area, that is the displacement, equals to area. Correct? Displacement equals to area under the curve. Is it correct? Here, let me consider displacement is area under the curve. Under curve, or we can say line. This is a line hour. Okay, means if you are finding displacement, you have to find the area of the given region. This is the area you have to find. Correct? This area we need to find. Total area you need to find. Now this convenient way we are able to find the area now. Any way we can find. If you can use directly formula of trapezium also, or you can find with the help of the rectangle and triangle also. We'll go slowly here now. First we'll go with the area of the rectangle now. Rectangle and triangle. Now let me consider this is a rectangle. Okay, this is our rectangle and this is our triangle. Upside is a triangle. Correct? Upside is a triangle. Now if you are adding the area 1 and area 2, we'll get the area of the particular region. Is it correct? Area of displacement means that area of triangle, area of triangle plus area of quadrilateral. Yes, we can write anyway, first triangle or second quadrilateral, anyway we can write. What is the area of the triangle here? What is the area of triangle? 1 by 2 base into height. Here that is the 1 upon 2. What is the base here given? This is the base, that is t. Base into height. What is the height given? That is the height,
that is V means this triangle only. Okay, this total is V and here is U, means this part will be V minus U, correct? The height will be V minus U. This is first part. Plus area of the quadrilateral. What is the area of quadrilateral here in figure? Length into breadth. This is our length U and this is our, but that is U into T, correct? This is UT. Now just again I am simplifying that one. First I am writing this UT plus 1 upon 2 that is in bracket V minus U and T. Now again you have to use the relations from the first Kahneman equations. You know the first equation. What is the first equation? V equals to U plus AT. That is V minus U equals to what? AT, correct? We already discussed in the first equation. Means what we are able to write, V minus U equals to what we are able to write? AT can we write? Just I am simply writing here. S equals to UT plus 1 upon 2 AT into T. Means S equals to UT plus 1 upon 2 A T square. This is your second Kahneman equation with the help of the graph. Got it now? Is it difficult in that? No. The same way, with the same formula also we can find the third equation also, or we can use the direct formula also for the trapezium also. The trapezium formula also we can use. Otherwise the same formula, area of triangle plus area of rectangle, by any way we will get the same result. Now here I am just introducing the new formula also with the same graph. Here this is V, U, this is T, that is this means V minus U, correct? And you have to find that displacement. What is the displacement? S equals to again area. Let me consider this and give the name A, B, C and V suppose. Okay, or D you can write. Area of quadrilateral A, B, C, D, correct? This area. How we are finding the area of trapezium? 1 by 2 sum of the parallel sides into perpendicular distance, correct? The area of trapezium is 1 upon 2 sum of the parallel sides into perpendicular distance, correct? Into perpendicular distance. Which are the parallel sides here? Parallel sides AB and that are the parallel sides, correct? That is what is value of AB is U, and what is value of U to C? V. Then I am able to write here 1 upon 2 U plus V into perpendicular distance. What is the perpendicular distance? This one, perpendicular distance, correct? What is perpendicular distance here? T. Just I am writing here T. Again you have to go with the help of the first equation, first kinematic equations. What is the first kinematic equations? V equals to U plus AT, that is V minus U by A equals to T, correct? Can we use that formula, equation relation? We substitute the value instead of T there. The S equals to here, S equals to 1 upon 2 U plus V, and instead of T I am able to write there V minus U by A. Now those terms are in denominator. I am shifting other sides, it will be in a numerator. Now here 2 is in denominator and A is also in a denominator. After shifting it will be 2AS equals to U plus V in one bracket and V minus U in one other bracket, correct? You know the one simple algebraic equation. If you don't know, you can multiply simply and then also you can find. Or if you know the relation A plus B and A minus B, it will be the A square minus B square. If you don't know, you can multiply directly, then you will find that plus UV and minus UV will be going to cancel. And what will remain here? 2AS V square minus U square. This is our, now if you are to write instead of V, V square equals to U square plus 2 AS. By this way we are able to write our third equations. Got it? How to find with the help of the graph? The first equation, second equation and third equations. Isn't it difficult in that? No, very good. बोलिए बेटा, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इसको परपेंडिकुलर बोलते हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना. पैरेलल को इसे क्या कहते हैं? पैरेलल दो लाइन निकालते पैरेलल, और ऐसा यानी क्या है तुम्हारा
सिंबल होता है परपेंडिकुलर का, मैथ्स में शायद पता होगा ना आपको, परपेंडिकुलर को शॉर्टकट में कैसे लिखते हैं, तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस. ओके, नाउ विल गो नेक्स्ट टॉपिक स्लाइड्स. नाउ हियर द क्वेश्चंस आर गिवन, द क्वेश्चंस earlier. The speed time graph is given. Okay, the speed time graph is given, and graph of the body shows in the figures, and answer the following questions. First question: what types of the motion is represented by OA? OA means from, I think here name is not given. Okay, I will write A, B, and C. But I think O here, origin O. Okay, now listen. Which type of motion represented by OA? OA, that is from O to A. Which kind of motion it is? It is which kind of graph given by this? Speed and time. That is O is a accelerated motion. स्पीड बढ़ रही है ना आपकी, तो हो रहा क्या है तुम्हारा, एक्सेलरेशन हो रहा है. और कैसा एक्सेलरेशन? पॉजिटिव एक्सेलरेशन. ओके, दो इज अ पॉजिटिव एक्सेलरेटेड मोशन. कैसा हो रहा है वो, उसका मोशन का एक्सेल स्पीड बढ़ रही है ना, यूनिफॉर्म है क्या हो, स्पीड कंटिन्यूस स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज. बराबर, यहाँ पे स्पीड दिया है, यहाँ पे 1 मिनट में स्पीड 0 थी, यहाँ पे आपकी स्पीड 2 हो गई, यहाँ पे 4 हो गई, यहाँ पे 6 हो गई. 4 मिनट सेकंड में कितना हो गया, 6 हो गई. तो इट इज कंटिन्यूस स्पीड इज गोइंग टू इंक्रीज, दैट इज एक्सेलरेटेड मोशन. आपको पता है कैसा निकालेंगे आप, ओए की पूछ रहा है तो ओए क्या है तुम्हारा, वेट. स्पीड और टाइम ग्राफ में स्लोप क्या होता है, स्लोप इज एक्सेलरेशन. बराबर है, इसका मतलब ओए क्या है आपका, ओए क्या है आपका, एक्सेलरेशन है. और कैसा एक्सेलरेशन है वो आपका, पॉजिटिव एक्सेलरेशन है. वेरी गुड. तो ओए क्या है तुम्हारा, एक्सेलरेशन. और कैसा एक्सेलरेशन तुम्हारा, पॉजिटिव एक्सेलरेशन. अभी सपोज आपको वैल्यूज निकालने के लिए पूछा तो वैल्यू भी निकालना पड़ेगा आपको. वैल्यू कैसे निकालोगे, 6/4. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 6/4? 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये आपका आंसर का फर्स्ट का, समझे. स्लोप निकाला आपने, स्लोप कैसे निकाला, y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय x2 माइनस x1. y2 कितना है, 6. 6 माइनस 0 कितना है, 0. 6 माइनस 0 6. x2 माइनस x1, 4 माइनस 0 कितना है, 4. 6/4 दैट इज 3/2, दैट इज 1.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये क्या होगा आपका, एक्सेलरेशन ऑफ OA. दैट इज पॉजिटिव है, दिस पॉजिटिव एक्सेलरेशन. समझ में आ गया. द नेक्स्ट वन, व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय द AB? AB क्या है, AB क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा, यूनिफॉर्म है. और वी कैन से जीरो एक्सेलरेशन. दूसरा नाम क्या बोलेगा ऐसे, जीरो एक्सेलरेशन और यूनिफॉर्म. जीरो एक्सेलरेशन क्या है, ए की वैल्यू कितनी है तुम्हारे यहाँ पर, 0 है. कैसे 0 है, बिकॉज दिस इज अगेन स्लोप. 6 माइनस 6, 0 डिवाइडेड बाय 6, 0. क्या स्लोप कैसे कहते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी बाय टाइम. फाइनल भी 6 है, इनिशियल भी क्या है, 6 माइनस 6 क्या आ गया, 0. डिवाइडिंग बाय 10 माइनस 4 दैट इज 6. 0 बाय 6 अगेन 0. दैट्स व्हाई दैट एक्सेलरेशन विल बी द 0. AB कितना है तुम्हारा, 0 है. AB 0, इसका मतलब ये टाइम पे स्पीड क्या है तुम्हारी, यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म स्पीड है. यहाँ पे क्या था, एक्सेलरेट हो रहा था गाड़ी आपकी, यहाँ पे गाड़ी की स्पीड क्या हो रही थी, यहाँ पे बढ़ रही है. यहाँ पे स्पीड क्या है तुम्हारी, सेम है, कांस्टेंट है. यूनिफॉर्म स्पीड ऐसा बोल सकते हैं आप. बराबर है, यूनिफॉर्म मोशन भी बोल सकते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड बोल सकते हैं, या तो जीरो एक्सेलरेशन बोल सकते हैं. दोनों वैल्यूज. अभी क्या पूछ रहा है देखो, व्हाट टाइप्स ऑफ मोशन रिप्रेजेंटेड बाय BC? BC क्या है, वेरी गुड, इट इज रिटार्डेशन. क्या है B, क्या है तुम्हारा, रिटार्डेशन. और डी एक्सेलरेशन भी बोलते हैं. रिटार्डेशन का मतलब भी क्या है, डी एक्सेलरेशन आल्सो नोन एज निगेटिव एक्सेलरेशन. निगेटिव भी एक्सेलरेशन आएगा. तो अभी अपन से वैल्यूज भी निकालेंगे अपन, क्योंकि आपको आगे निकालने भी पड़ेगी क्वेश्चंस में. यहाँ पे नहीं पूछा है लेकिन अपन प्रैक्टिस के लिए निकाल लेंगे. तो क्या आ गया यहाँ पे, फाइनल कितना है, फाइनल वेलोसिटी कितना है यहाँ पे, 0. इनिशियल कितना है, 6. अरे इनिशियल कितना है, 6. तो यहाँ पे 0 माइनस 6 डिवाइडेड बाय 12 माइनस 10, 16 माइनस 10, 6. यानी कितना आ गया, -1 मीटर पर स्क्वायर, -1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ये क्या होगा तुम्हारा, एक्सेलरेशन ऑफ BC. एनी डाउट इन क्वेश्चन नंबर 1 2 3? वेरी गुड. नाउ कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. अरे एक्सेलरेशन निकालने को अभी पूछा है, अपन पहले निकाल दिए. कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी. तो एक्सेलरेशन ऑफ OA कितना हो गया आपका, 1.5 मीटर पर.
कैलकुलेट द रिटार्डेशन, रिटार्डेशन कितना है -1 मीटर पर, देखो अभी देखो और देखो एक्सेलरेशन -1 है, रिटार्डेशन के लिए क्या है, रिटार्डेशन है और ही निकल माइनस लिखने की जरूरत नहीं है यहाँ पे आपको। रिटार्डेशन का मतलब भी क्या है, वो माइनस होता है, तो फिर से बार बार माइनस लिखने की जरूरत, हाँ एक्सेलरेशन क्या है पूछता था तो -1 लिखो, रिटार्डेशन क्या है पूछता है तो फिर माइनस लिखने की जरूरत नहीं है। द कैलकुलेट द डिस्टेंस ट्रेवल्स बाय द बॉडी ऑफ बॉडी ए टू बी, अभी डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस निकालने क्या करना पड़ता है अपने को, हाउ टू फाइंड द डिस्टेंस, वी नीड टू फाइंड द एरिया, करेक्ट। और कौन सा डिस्टेंस निकालना बोले, कहाँ से निकाला बोले उन्होंने, ए से लेके बी तक ही निकालना है, क्या निकालना है बी, तो क्या निकालना पड़ेगा आपको, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, इसका एरिया निकालना पड़ेगा आपको, बराबर है। सिर्फ क्या पूछा है उसने, ए से लेके बी तक ही पूछा है ना, तो क्या करना पड़ेगा आपको, डिस्टेंस निकालने के लिए करना पड़ेगा एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल, बराबर, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल आएगा। इसकी लेंथ कितनी है तुम्हारी, यहां से 6 है, ब्रेथ कितना है 6 है, 6 इंटू 6 36 है ना, 6 इंटू 6 36, यूनिट क्या होगा उसका, मीटर स्क्वायर, गॉट इट, समझ में आ गया, कोई डिफिकल्टी इसमें नहीं। लेट मी प्रोसीड फॉर नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। और देखिए अभी क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, देखिए अभी क्या बता रहा है, ग्राफ गिवन बिलो द वेलोसिटी टाइम ग्राफ, सेम ग्राफ दिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ जो पहले जैसे था वैसा ही ग्राफ है ये भी। फॉर मूविंग बॉडीज फाइंड वेलोसिटी ऑफ द बॉडी एट पॉइंट सी, पॉइंट सी पे वेलोसिटी कितनी है, अरे हाँ 40 बोले चलेगा क्या आंसर, नहीं 40 किलोमीटर पर आवर, यू हैव टू एक्सप्लेन यूनिट आल्सो, वेरी गुड। तो क्या है यहाँ पे 40 किलोमीटर पर आवर है ना, यहाँ पे क्या है 40 किलोमीटर पर आवर, यहाँ पे तुम्हारे पॉइंट सी की वेलोसिटी क्या होगी 40 km पर आवर। द नेक्स्ट वन, कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बिटवीन ए एंड बी, ए और बी का एक्सेलरेशन निकालना है आपको, ये एक्सेलरेशन कैसे निकालते हैं अपन, स्लोप निकालते हैं, ओके, हाउ टू फाइंड, स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप कैसे निकालते हैं, y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस, तो y2 कितना है 40, x2 कितना है, y1 कितना, y1 कितना है 20, तो 40 माइनस 20 डिवाइडेड बाय टाइम कितना है तुम्हारा, यहाँ पे सपोज यहाँ पे स्केल देखो, हाँ 1 2 3 4 5, यहाँ पे क्या है, इसका मतलब है 3 है, बराबर है ना, तो 3 माइनस 0 कितना आ गया 3, 3 माइनस 0 कितना 3, तो यहाँ पे 20 डिवाइडेड बाय 3 है ना, 20 डिवाइड बाय 3 कितना आएगा फिर, 3 6 18, तो 6 पॉइंट और 6.67 यूनिट क्या आ गया उसका, एक्सेलरेशन का मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सॉरी किलोमीटर पर आर, वेरी गुड, km प्लस आर, km प्लस HR है ना, किलोमीटर आर स्क्वायर। हाँ टाइम इसमें जाए तो तुम्हारे को टाइम आवर में जाए तो क्या करना पड़ेगा अपने को, आर स्क्वायर, एक्सेलरेशन यूनिट क्या है तुम्हारा मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मैंने डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम का स्क्वायर है, तो डिस्टेंस यहाँ पे किलोमीटर है, तो टाइम का स्क्वायर क्या है आर का स्क्वायर, तो किलोमीटर पर आर स्क्वायर, समझ में आ गया। अभी यहाँ पे क्या पूछा है, देखो एक्सेलरेशन एक्टिंग द बॉडी बिटवीन बी एंड सी, बी एंड सी पे एक्सेलरेशन क्या है, वेरी गुड 0 किलोमीटर पर आर स्क्वायर है ना, 0 किलोमीटर पर आर स्क्वायर, ये क्या होगा तुम्हारा एक्सेलरेशन ऑफ द बॉडी बी। हाउ टू फाइंड स्लोप ऑफ बीसी, बीसी का स्लोप निकालना है, बीसी का स्लोप निकलने के बाद में क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन एट द पर्टिकुलर पॉइंट। क्वेश्चन क्लियर, वेरी इजी, गुड। द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ देखिए अभी क्या पूछा है यहाँ पर, द ग्राफ रिप्रेजेंट फिगर शोज द पोजीशन ऑफ द बॉडीज डिफरेंट टाइम्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी। अब देखो स्पीड निकालना है, ये क्या डिस्टेंस टाइम ग्राफ दिया है, क्या दिया है डिस्टेंस टाइम, तो डिस्टेंस टाइम ग्राफ में स्पीड निकालने के लिए क्या करना पड़ता है अपने को, वी हैव टू फाइंड द स्लोप, बराबर है, एरिया निकाल के क्या आएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट आएगा, ओके। तो यहाँ पे क्या पूछा उन्हें, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द बॉडी फ्रॉम ए टू बी, ए से लेके बी तक स्पीड निकालना है, कैसा करोगे, स्लोप निकालो, क्या आएगा स्लोप, स्लोप कितना है, हाँ 2 6 8 10, और ये कितना है तुम्हारा, सपोज यहां से लेके यहां तक है 4, बराबर है, तो कितना होगा स्लोप तुम्हारा, देखिए तो यहां से 4 डिवाइड बाय 8 tan थीटा
है ना, आप tan थीटा लेते थे अपोजिट बाय एडजेसेंट, तो अपोजिट कितना है तुम्हारा 4 है और ये कितना है तुम्हारा 8 है, स्लोप कितना आ गया फिर तुम्हारा 4 डिवाइडेड बाय 8 यानी 1/0.5 यूनिट क्या है किलोमीटर सेकंड, यहाँ पे किलोमीटर दिया और यहाँ पे क्या दिया है देखना है, तो किलोमीटर 0.5 किलोमीटर पर सेकंड, समझे, इस तरह से निकालना है। और स्लोप से भी निकाल सकते, स्लोप y2 से भी निकाल सकते, वही आंसर आएगा। अब कैसा पूछा क्या है BC, BC कितना है, ये स्लोप निकालना है इसका, कैसा आएगा स्लोप 4 डिवाइडेड बाय 4, 4 माइनस 4 0, 0 डिवाइडेड बाय 4 0, और tan 0 की वैल्यू भी 0 होती है ना, एंगल इसका है इसका 0 है, तो tan 0 भी कितना होता है 0। यहाँ पे क्या है तुम्हारा BC का स्लोप कितना का है इक्वल्स टू 4 माइनस 4 डिवाइडिंग बाय 4 दैट इज 0/4 इक्वल्स टू 0 किलोमीटर पर सेकंड। अभी निकालना है CD का, यहाँ से यहाँ तक का, बराबर, तो क्या निकालोगे आप, हाँ बोलिए 16 माइनस 4 कितना आ गया 16 माइनस 4 डिवाइड बाय टाइम कितना है, यहाँ पे देखो ये 16 है ना, ये 12 16, यहाँ पे 16 है और यहाँ पे 18 है, 18 में से 14 गए, कितने आ गए, दो का डिफरेंस है ना, देखो 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, बराबर है। तो क्या है तुम्हारा, देखो अभी क्या y2 माइनस y1, y2 कितना है तुम्हारा 16 है, 16 माइनस कितना निकले 4 डिवाइड बाय 18 माइनस 14, तो कितना है 12 बाय कितना है 3 किलोमीटर पर सेकंड, बराबर है क्या, सही है, गुड, समझ में आ रहा है क्या। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपके लिए है, आप सॉल्व करते क्या देखेंगे। इन द फिगर द डिस्टेंस टाइम ग्राफ, डिस्टेंस और टाइम दिया है, डिस्टेंस और टाइम दिया है, ग्राफ एंड ऑब्जेक्ट्स, डू यू थिंक इट रिप्रेजेंट्स अ रियल सिचुएशन, सही ग्राफ है या नहीं, ये ग्राफ सही है क्या, इफ सो व्हाई, सही है तो क्यों सही है, इफ नॉट व्हाई नॉट, ये ग्राफ सही है क्या, पता करना है अपने को। अब क्या आपका क्या कहना है, कुछ चीज नहीं है ना, ग्राफ क्या है तुम्हारा, कुछ चीज नहीं है, दिख रहा पर समझता नहीं, ग्राफ ऑलरेडी दिया है ना उन्होंने, निकालने की जरूरत नहीं है। तो इन्होंने क्या पूछ रहा है, सिचुएशन तुम्हारी सही है या नहीं, ये पूछ रहा है ना। यहाँ पे क्या पूछा है, तुम्हारी गाड़ी तुम्हारी यहाँ से चालू हो रही है, सही है, मैं कहता हूँ नहीं है, मैं कहता हूँ नहीं है, देखिए क्यों नहीं है बोलता मैं, चलो अब बोलता मैं क्यों नहीं है ग्राफ, है ना, ग्राफ क्यों ग्राफ रियल नहीं है, क्या पूछ रहा हूँ ग्राफ, डू यू थिंक इट इज रिप्रेजेंट अ रियल सिचुएशन, रियल सिचुएशन हो सकती है क्या, मैं कहता हूं नहीं हो सकती है, मैं कहता हूं नहीं हो सकती, क्यों नहीं हो सकती है, अभी उसका एक्सप्लेनेशन मैं देता हूं आपको, है ना। देखिए क्यों, क्योंकि टाइम इज नेवर बैक, टाइम रिवर्स आता है क्या, नहीं आता है। तो यहाँ पे क्या पूछा है देखो, तो पहले 0 से लेके तुम्हारा कोई डिस्टेंस तुम्हारा कवर हुआ है तुम्हारा 75 तक, तो फिर यहाँ से यहाँ तक गया, फिर बाद में यहाँ पे ऐसा आता है, आएगा क्या, नहीं आएगा, है ना। तो ये ग्राफ जो दिया है वो पैरेललोग्राम का ग्राफ दिया है उसमें, है ना। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए तुम्हारा ग्राफ, हाँ तो यहाँ पे ऐसा गया है, ये ऐसा गया है, तो फिर ये आगे कहीं तो जाना था, बराबर है, ये सिचुएशन करो, बराबर है तुम्हारी PR, तुम पहले 0 से लेके तुम 4 सेकंड में P पे गए, फिर P से लेके Q में कितना 10 सेकंड में जाओगे। अभी यहाँ चलो, यहाँ पे तुम 10 सेकंड में गए, यहाँ पर यहाँ तक, है ना, यहाँ से P से लेके Q तक यहाँ पे रुके, तो यहाँ पे टाइम तो जा रहा है, यहाँ पे गए, फिर टाइम जा रहा है, फिर टाइम आगे नहीं बढ़ रहा है, तुम आगे जा सकते हो विदाउट टाइम आगे बढ़ने के बाद में, हाँ तो ये सिचुएशन सही है क्या, नहीं है। तो ये ग्राफ क्या है तुम्हारा, इट इज इनकरेक्ट। समझ में आ गया क्वेश्चन में क्या हो रहा है। देखिए तो आपको कुछ समय लग रहा है ना, 0 से 4 सेकंड में ये सिचुएशन सही है, आपकी पहली सिचुएशन सही है, 4 सेकंड में आप जा सकते हो, फिर जाने के बाद में यहाँ पे आप क्या हो गए, रुक गए आप, बराबर है, यहाँ पे आप रुक गए, आप रुके तो टाइम रुक रहा है क्या, टाइम नहीं रुकेगा किसी के लिए, है ना। आप कोई ऑब्जेक्ट रुक रहा होगा पर टाइम रुकेगा क्या, नहीं। तो टाइम सपोज यहाँ पे यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे आप गए 6 पे गए, यहाँ पे 8 पे गए और यहाँ पे 10 पे आ गए, जहाँ पे 10 पे आ गए, आगे जा रहे हैं विद 0 टाइम में आगे जाना पॉसिबल है, इज नॉट पॉसिबल,
है ना। तो उन्होंने क्या करा तुम्हारा, फिर यहाँ से क्यू से लेके यहाँ पे बताया। हाँ, यहाँ पे क्यू बताया, यहाँ पे टाइम होता तो सही था, वो आगे जाता था, क्यू का टाइम तुम्हारा यहाँ पे आता तो ग्राफ था क्या था तुम्हारा, सही था। पर वो पीछे दिखाया ग्राफ को क्या बताया, निगेटिव स्लोप बताया इसका। क्या ये क्या, ये क्यू से आर दिया है, शेडेड पोर्शन दिया है ना आपका। हाँ, तो ऐसा इधर का पार्ट दिया है ये। हाँ 14 सेकंड पे, हाँ ऐसा ग्राफ होता, ये भी पॉसिबल है क्या। सडनली आप समझो यहाँ पे 0 से 4 पे गए, 4 से तुम्हारा क्यू पे यहाँ पे 14 सेकंड पे गए, रुके ही वहाँ पे, स्पीड तुम्हारी सेम है। यहाँ सिचुएशन पे तुम्हारे को यहाँ ऐसा ग्राफ होता था तो तुम्हारा सिचुएशन इस वैलिड होता था। समय के साथ तुम रुके तो, लेकिन टाइम रुक रहा नहीं, टाइम कंटिन्यूस जा रहा है और आप भी कंटिन्यूस जा रहे हैं। पर यहाँ पे क्या है, वो रिवर्स आ गए, रिवर्स तो आना पॉसिबल नहीं है, इसलिए ग्राफ तुम्हारा पॉसिबल नहीं है। करेक्ट है। हाँ, ये ऐसा सिचुएशन होता तो सही है ना, यहाँ पे जाता था तो भी तुम्हारा सही था, पर ये क्योंकि इसका स्लोप निकालो, स्लोप क्या आएगा, स्लोप क्या आएगा, डिस्टेंस और टाइम का स्लोप क्या आएगा, वेलोसिटी, बराबर है। तो इसका स्लोप क्या आएगा, चलो अपन स्लोप निकाल देंगे ये कंडीशन का। कौन से, स्लोप ऑफ क्यू आर क्या आएगा बोलो, स्लोप ऑफ क्यू आर। पता है आपको डिस्टेंस टाइम में क्या होता है, डिस्टेंस टाइम का स्लोप क्या होता है, स्पीड इज नेवर निगेटिव। स्पीड निगेटिव होती है क्या, नहीं होती है। आप देखेंगे अपन इसका स्लोप क्या रहा है, 75 क्या इनिशियल स्पीड क्या है उसकी, यहां से जा रहा है तो कहां से जा रहा है तुम्हारा, यहां पे है ना। ये इसका स्लोप निकालना है, Q to R का स्लोप निकालना है। क्या है इनिशियल, फाइनल क्या है तुम्हारा, यहाँ पे इनिशियल है और फाइनल क्या है, 0 है, हाँ 10 है, वेरी गुड, है ना। तो क्या आ गया तुम्हारा डिफरेंस, क्या आ गया तुम्हारा, फाइनल माइनस इनिशियल। अभी यहाँ पे क्या है तुम्हारी स्पीड, क्या है तुम्हारी इनिशियल यहाँ पर है u और ये क्या है तुम्हारा v, है ना। तो 75 माइनस, सॉरी नहीं, ये ग्राफ का स्लोप निकाले ना अपन, यहां से निकाल रहे स्लोप, कैसे भी निकालो, चलो यहां से स्लोप निकालो। तो क्या है तुम्हारा, अभी तुम जा रहे तो यहां से निकल रहे, पहले जा रहे कहां से, आप यहां से जा रहे ऐसा, बराबर है। यहां पे गए तो यहां से फिर क्या गए, यहां पे गए तो फिर यहां से रिवर्स आओगे क्या, यही क्वेश्चन है ना। यहीं पे गलत हो रहे आप, टाइम रिवर्स आएगा क्या, टाइम रिवर्स नहीं आएगा। तो इसमें यहां पे इनिशियल स्पीड कितनी है आपकी, 75 है, और फाइनल स्पीड कितनी होगी तुम्हारी 10, है ना। स्पीड नहीं, यहाँ पे एक्चुअली स्पीड तो तुम्हारी फाइनल 0 होगी, स्पीड बोले तो ये है, डिस्टेंस बोल रहा मैं, ये डिस्टेंस है तुम्हारा, इनिशियल डिस्टेंस कितना है 75 है और फाइनल डिस्टेंस कितना हो गया तुम्हारा 0। टाइम तुम्हारा चेंज हो रहा, तो क्या है इनिशियल डिस्टेंस 75 माइनस 0 डिवाइड बाय, अभी क्या देखो, पहले यहां पे टाइम क्या था 14, यहां पे टाइम क्या है 10, है ना। तो फाइनल माइनस इनिशियल 14 माइनस 10, सॉरी 10 माइनस 14, तो कितना आ रहा है, निगेटिव आ रहा है, और स्पीड इज नेवर निगेटिव, दैट्स व्हाई दिस ग्राफ इज नॉट सुटेबल। समझ में आ गया, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, तो नेक्स्ट वाला देखेंगे अभी, क्वेश्चन नंबर, ये ग्राफ, द ग्राफ गिव्स द एनालॉग्स शोज हाउ द स्पीड्स ऑफ द कार चेंजेस विद द टाइम। हाँ इधर देखो, तो कार की स्पीड कैसी चेंजेस हो रही है देखना है अपने को, है ना। व्हाट इज द इनिशियल स्पीड ऑफ द कार, क्या इनिशियल स्पीड क्या है कार की, वेरी गुड, नहीं 0 है क्या, 10 है, इनिशियल स्पीड कितना है कार का 10, है ना। ये u क्या है आपका 10, तो इनिशियल स्पीड क्या है आपकी कार की, यूनिट क्या है किलोमीटर पर आवर, है ना, 10 किलोमीटर पर आवर इनिशियल स्पीड दिया। व्हाट इज द मैक्सिमम स्पीड अटेन्ड बाय द कार, मैक्सिमम स्पीड कितना जा रहा है कार का 35, वेरी गुड। तो मैक्सिमम कितना जा रहा है तुम्हारा 35 किलोमीटर पर आवर। विच पार्ट्स ऑफ द ग्राफ शोज द जीरो एक्सेलरेशन, जीरो एक्सेलरेशन कहां पर है, पार्ट बीसी, वेरी गुड, इन पार्ट बीसी। यहाँ पे ग्राफ एक्सेलरेशन क्या है तुम्हारा 0, क्योंकि कैसे निकालते आपने निकालना पड़ेगा, स्लोप निकालना पड़ेगा, स्लोप ऑफ बीसी कितना है आपका 0 है। द नेक्स्ट वन, विच पार्ट्स ऑफ द ग्राफ शोज वेराइंग रिटार्डेशन, रिटार्डेशन बट कैसा है वो तुम्हारा यूनिफॉर्म है क्या, नहीं वेराइंग है, यानी ग्राफ क्या है तुम्हारा कर्व है। जहां पे वेराइंग आया वहां पे ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है आपका, सिंपल, और ऊपर से नीचे आ रहा है इसका मतलब रिटार्डेशन हो रहा है, तो ग्राफ क्या होगा तुम्हारा वेराइंग पार्ट सीडी, बराबर है, सीडी आ गया, है ना। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवर्स इन 8 आवर्स, तो 8 आवर्स में डिस्टेंस ट्रैवल करना है
डिस्टेंस ट्रैवल्स करने के लिए क्या करना पड़ेगा अपने को, वी नीड टू फाइंड द एरिया, है ना। कहाँ तक निकालना है एरिया, 8 आवर्स तक, तो यहां तक का एरिया निकालना है आपको, ये एरिया निकालना है, बराबर है। तो एरिया कैसे निकालोगे आप, आपको निकालने क्या करना पड़ेगा, सिंपल इसमें लिए क्या करना पड़ेगा आपको, एरिया, देखिए तो एरिया निकालने में क्या करेंगे, पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल निकालेंगे, ये क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल प्लस एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, बराबर है, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम और एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो एरिया ऑफ ट्रेपेजियम क्या है तुम्हारे यहां पर 1/2 सम ऑफ द पैरेलल साइड्स कितना है तुम्हारा 10 प्लस 35 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 3, ये होगा फर्स्ट पार्ट, प्लस ये क्या है तुम्हारा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कितना है तुम्हारा 8 - 3 5, 35 इंटू 5, बराबर है। आंसर किस में आएगा अपना, नहीं एरिया को किलोमीटर, डिस्टेंस को किलोमीटर पर आवर, डिस्टेंस इज ओनली इन किलोमीटर, किलोमीटर पर आवर क्या होगा तुम्हारी वेलोसिटी हो गई, डिस्टेंस के लिए क्या आएगा ओनली किलोमीटर, ओके। तो अभी सिंप्लीफाई कर सकते हैं आप, तो कितना है तुम्हारा 45 इंटू 3 डिवाइड बाय 2 प्लस 35 इंटू 5 कितना है 5 5 25 टू 5 कैरी 2 3 5 15 15 प्लस 2 75। तो अभी सिंप्लीफाई करो इसको, है ना, या तो एडिशन कर लेंगे इसको, कर देंगे यहाँ पर, चलो यहाँ पे कितना होगा 1.5, 45 मल्टीप्लाई बाय 115 करो, 15 5 5 कैरी 7 60 60 प्लस 7 67 प्लस 175 175.0 प्लस 67.5, ये आ गया आपका 242.5 किलोमीटर, समझे। हाँ देखिए नेक्स्ट वन, तो टुडे इज सफिशिएंट फॉर दैट। तो क्या पढ़े आपने आज की क्लास में, बेसिकली क्या पढ़े अपन, इक्वेशन विद ग्राफिकल मेथड, और जब स्लोप में वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जब स्लोप निकालते हैं अपन तो क्या मिलता है अपने को, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का स्लोप मिल जाए तो एक्सेलरेशन मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ का स्लोप निकालते तो क्या मिल रहा है, वेलोसिटी, ओके। एंड इफ यू आर फाइंडिंग द एरिया इन ग्राफ डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ, यू आर गेटिंग द, क्या मिल रहा है, डिस्प्लेसमेंट टाइम ग्राफ में एरिया निकाल तो मिल रहा है वेलोसिटी, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एरिया निकल तो क्या मिलेगा आपको, एक्सेलरेशन मिलेगा, क्या एक्सेलरेशन टाइम का निकल तो एक्सेलरेशन मिलेगा, ओके। समझ में आ गया है, कोई डाउट इसमें, क्या पढ़े समझ में आ गया ना। फर्स्ट इक्वेशन पढ़े ग्राफिकल मेथड से v इक्वल्स टू u प्लस at, सेकंड इक्वेशन क्या पढ़े s इक्वल्स टू ut प्लस 1/2 v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर प्लस स्लोप, देखे अपन स्लोप क्या है तुम्हारा y2 माइनस y1 डिवाइडिंग बाय और tan ऑफ थीटा, बराबर है, tan थीटा से भी स्लोप निकाल सकते हैं, और निकाले एरिया के फॉर्मूले देखे अपने, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल 1/2 बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल लेंथ इंटू ब्रेथ, और एरिया ऑफ ट्रेपेजियम, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम 1/2 सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये अपन फॉर्मूलेज देखे, बराबर है। तो इसके इफ यू हैव एनी डाउट कैन आस्क, आपके लिए होमवर्क कुछ दिया है तो देखेंगे, होमवर्क में क्या करना है आपको, द सेम थिंग यू हैव टू रिपीट अगेन, द ग्राफिकल इक्वेशंस can solve at your home, and if any the numerical examples, if you are facing difficulty you have to solve that examples. If you are unable to can able to solve, you can ask me, then we'll work together. This today's homework. Thank you for today's sessions. If anyone having doubt can ask and clear your doubts. कोई डाउट है आज के टॉपिक में, कोई डिफिकल्टी, आइंस्टाइन कोई डिफिकल्टी, हाँ समझ में आ रहा है, टॉपिक इज वेरी सिंपल टुडे, ओके, यू कैन वाइंड अप टॉपिक।